welcome students. Now we were doing our first chapter, that is matter in our surroundings. So our next topic is difference between vapor and gas. Gas we have already discussed. What are the properties of gas? Now what about vapors? This is also a gas. Then what is the difference between vapor and gas? Let's discuss. First is vapor क्या है? Vapor भी एक gas है. Vapor is a gas produced. कब प्रोड्यूस होती है? Produced by heating. जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, by heating solid और liquid. सॉलिड और लिक्विड को हीट करने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? वेपर. विच अगेन रिटर्न, जो दोबारा से रिटर्न हो जाती है एट इट्स सॉलिड और लिक्विड स्टेट, कब? एट हाई प्रेशर एंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे. ओके स्टूडेंट्स, और हम ये जो वेपर है ये भी क्या होती है? एक गैस. तो गैस के केस में हम क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. वो हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहती है. कब? एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? गैसेस एट रूम टेम्परेचर. क्या ये अपनी स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड टू लिक्विड? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट वेपर्स? एट रूम टेम्परेचर ये सॉलिड या लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, बट हीट प्रोवाइड करने के बाद दे गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स. ओके, तो हीट इसमें प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और जैसे ही वो टेम्परेचर नॉर्मल होता है ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं. दैट इज सॉलिड और लिक्विड स्टेट में दोबारा वापस आ जाते हैं. इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं. वेपर्स कैन बी लिक्विफाई. वेपर्स कैन बी लिक्विफाई. हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर. प्रेशर को हाई कर दो एंड डिक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो. अगर प्रेशर को हम हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तब क्या होगा? इट गेट्स वेपर कैन बी लिक्विफाइड. व्हाट अबाउट गैस? गैसेस को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं. गैसेस नीड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. इसको भी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए होता है. कितना लो? Than its critical or below its critical temperature. Below its critical temperature. What is critical temperature? I have already told that critical temperature क्या होता है? Temperature below this temperature या gases below this temperature acts as vapors and only vapors can be liquefied. So gases भी हम liquefy कर सकते हैं. कैसे? पहले उनको vapors में convert होना पड़ेगा. कैसे? By applying high pressure and low temperature. कितना low? Below its critical temperature. Then gas can convert to vapors and vapors can be liquefied. Vapors can be liquefied. Okay students, next topic is effect of change of temperature. What is the effect of change of temperature? When we apply temperature, state gets changed. From solid to it gets changed to liquid, and then from liquid to it gets changed to gas. If I apply heat, solid gets converted to liquid, and this process, conversion from solid to liquid, this conversion is known as melting or fusion. Now states get changed from solid to liquid. Now liquid can also convert to gas by providing heat, and this process of conversion from liquid to gas is known as boiling or vaporization. Next is we can also convert gas to liquid by cooling. Cool the gas, then it
it gets converted to liquid, and this process is known as condensation. Again, liquid can be converted to solid, and this process is known as solidification or freezing. That's you have already learned in your lower classes. Next is change of state from solid to liquid. What is the change of state from solid to liquid? State gets changed from solid to liquid. How can we change that? By applying heat or by increasing its temperature. So the process when solid melts into liquid is called melting. Now what about melting point? Melting point is what? The temperature. Melting तो वो है जब स्टेट चेंज हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सॉलिड स्टार्ट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. वैसे मेल्टिंग क्या होती है? स्टेट चेंज सॉलिड टू लिक्विड, बट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग. कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेल्टिंग पॉइंट. ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो उसमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी? कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे? कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी? उसमें एग्जिस्ट करेगी बोथ आइस एंड लिक्विड वाटर. लिक्विड वाटर एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट करेगा? ओनली आइस एग्जिस्ट. सिर्फ आइस एग्जिस्ट करती है. थर्ड इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम क्या एग्जिस्ट करेगा? ओनली लिक्विड वाटर एग्जिस्ट. लास्ट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? बोथ लिक्विड वाटर भी होगा और क्या होगा? एंड वेपर्स एग्जिस्ट. और लिक्विड के वेपर्स भी क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज हाउ सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड. जो सॉलिड है वो कैसे मेल्ट होता है लिक्विड में? देखो ये चीजें हमें पता है. वी ऑलरेडी नो दैट सॉलिड गेट्स चेंज टू लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट और बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. बट हाउ सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड, वो कैसे मेल्ट होता है? इफ वी प्रोवाइड टेम्परेचर, then particles gain kinetic energy. When particles gain kinetic energy, they start vibrating. Particles vibrate होना start हो जाते हैं. And when they start vibrating, they break their force of attraction. उनके अंदर particles के अंदर जो force of attraction है वो उसको break करना शुरू कर देते हैं और freely move करना start कर देते हैं. Take an example of ice. जब हम ice को heat करना शुरू करेंगे, सबसे पहले ice के अंदर जो force of attraction है वो क्या है? बहुत ज्यादा, right? एंड वेन वी अप्लाई हीट, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू किया तो उसके पार्टिकल्स के अंदर पहले क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी. एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. आइस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी. उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज. लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड फ्लो कर सकता है. लिक्विड कैसे फ्लो कर सकता है? क्योंकि पहले जो आइस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होएगी, उसके बाद इट गेट्स कन्वर्ट टू लिक्विड. तो सबसे पहले क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी. काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे या ओवरकम कर देंगे. ओके, ताकि वो किसमें स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज कर सके. नेक्स्ट इज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. वेयर डज द एनर्जी गो? ठीक है, इफ वी डू एन एक्सपेरिमेंट, हम एक आइस लेते हैं और आइस का टेम्परेचर चेक करते हैं. ठीक है, वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस. एंड इफ आई अप्लाई टेम्परेचर, अगर मैं उस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी या हीट प्रोवाइड करूंगी, तब सॉलिड क्या होगा? लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. इट स्टार्ट मेल्टिंग, है ना. जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा और तब हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, इट अगेन शो 0 डिग्री सेल्सियस. हमने तो हीट प्रोवाइड की, पहले सॉलिड था, अब लिक्विड में चेंज हो गया. अब वो टेम्परेचर कहाँ गया? हमने उसको हीट प्रोवाइड की, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में इट गेट्स चेंज. नाउ वेयर डज द टेम्परेचर और हीट एनर्जी गो? एनर्जी कहाँ चलेगी? वो कहाँ चली जाती है? वो स्टेट चेंज करने में चली जाती है. पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, हमने हीट प्रोवाइड की, सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड. बट टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ. व्हाई सो? बिकॉज
कितनी भी हम उसको एनर्जी, जितनी हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की थी या टेम्परेचर प्रोवाइड किया था या हीट प्रोवाइड की थी, इट गेट्स यूज्ड अप टू चेंज द स्टेट। स्टेट चेंज करने के लिए वो यूज्ड अप होगी। अब स्टेट को चेंज किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया, ठीक है, एक स्टेट चेंज कर दी, उस वो जो हीट थी वो किसमें यूटिलाइज होगी, एक स्टेट चेंज करने में और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, राइट। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं हिडन होगी। किसमें हिडन होगी, इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर। हीट प्रोवाइड की लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर। जो बीकर के कंटेंट्स हैं समवेयर इट गेट्स हाइड, वो जो हीट है वो उसमें हाइड होगी और स्टेट में चेंज करने में उसकी हेल्प की और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में उसकी हेल्प की। तो जो ये हाइड हो जाती है एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। जब 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक, उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट। ओके, सो अब जो वेपर और गैस है, पहले हमने ये वाला टॉपिक किया, उसके बाद क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर।